ਦੇਖੋ ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀਏ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। बट जो डार्क नेट पे यूज होता है, बेसिकली इंटरनेट को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। हाँ जी। एक हो गया सरफेस नेट या सरफेस वेब, मतलब जो हम गूगल में या किसी सर्च इंजन में सर्च करते हैं, कोई हमें वेबसाइट या कोई इमेज या कोई वीडियो दिखता है। जैसे आपने यूट्यूब पे सर्च किया, कोई वीडियो दिख गया, हाँ जी। आपका किसी ने चैनल सर्च किया, यूट्यूब पे आपके वीडियोज अवेलेबल हैं, कोई देख सकता है। राइट। बट आपके गूगल अकाउंट में लॉगिन करके आपके जीमेल में क्या मेल्स आए हैं वो नहीं देख सकता। उसे कहते हैं डीप नेट। हाँ जी। तो सरफेस नेट जो इंटरनेट पे ब्राउज करके विजिबल हो जाता है। डीप नेट वो डेटा होता है जो कोई ऑथेंटिकेशन के बाद में आप देख सकते हैं, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद में दिखेगा आपको। हाँ जी। वेबसाइट का डेटाबेस हो गया, सर्वर का डेटा हो गया, या किसी मेल बॉक्स का डेटा हो गया। और एक होता है जो थर्ड और लास्ट होता है, वो होता है डार्क नेट। डार्क नेट जो है वो नॉर्मली इस तरीके से ब्राउज नहीं होता। उसको कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज करके आप डार्क नेट की वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। राइट। गूगल पे सर्च करने से नहीं दिखता। वो वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक जो कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है वो है टॉर। वहां पे बेसिकली किसी को टास्क भी असाइन कर सकते हैं कि अगर कोई चाहता है कि अच्छा ठीक है, आई वांट समवन टू बी किल्ड, तो उसको बेसिकली किलिंग के लिए असाइनमेंट दे सकता है, या किसी को कोई फिजिकल असॉल्ट के लिए असाइनमेंट दे सकता है। $5,000 से लेके $200,000 तक के उनके रेट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट। ओके। जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत प्रोग्राम हरजिंदर ਗਿੱਲ शो 1350 AM ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਨੇ ਸਾਈਬਰਓਪਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਦ ਬਿਟਕੋਇਨਸ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਸਪਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। जी बेसिकली जैसे भूपेंद्र जी ने अभी ब्रीफ किया है कि मुझे रफली कुछ 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। हाँ जी। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर ऑपरेशंस, इसमें मैं पुलिस एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऑपरेशंस में असिस्ट करता हूँ। तो इसमें जो टिपिकल चैलेंजेस होते हैं, समटाइम्स स्टेट लेवल का मैटर होता है, समटाइम्स नेशनल लेवल का इशू होता है, जहाँ पे एजेंसीज जो हैं वो स्टकअप हो जाती है कि इससे आगे फर्दर हैंडल कैसे होगा, ये केस कैसे क्रैक होगा, वहाँ पे मैं असिस्ट कर रहा होता हूँ। राइट।
सो अच्छा सर, नॉर्मली जब हम कई बार डिफरेंट पोजीशंस की बात करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि यार रिसेंटली शायद साल 2 साल पहले ही ऐसी कुछ पोजीशंस की ज़्यादा डिमांड होगी, बट आपने जैसे बोला कि पिछले पिछले 15 से आप इस फील्ड में हो, तो थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करें। आपको क्या लग रहा है कब से ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी जो ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ी थी हमें, हमारी सोसाइटी को या गवर्नमेंट्स को या डिफरेंट कॉरपोरेट्स को? सर जब ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना था इस फील्ड के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसके अंदर करियर होगा या नहीं होगा, बट शुरू से एक ड्रीम था आईपीएस बनने का। तो एक दिन एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा कि पुलिस कमिश्नर जो हैं उन्होंने ये बोला कि हमें कोई एक एक्सपर्ट चाहिए जो हमारा साइबर सेल सेटअप करने में हेल्प कर दे। ओके। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि अच्छा ठीक है, मे बी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आईपीएस अगर हम नहीं बन रहे तो आप इस टाइप की सर्विसेज पुलिस को ऑफर करके आप आईपीएस के साथ में वर्क करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ओके। तो जो इनिशियल जो मेरा इंटरेस्ट था वो ये था कि आई कैन वर्क विद आईपीएस ऑफिसर्स एंड आई कैन वर्क विद देम, आई कैन असिस्ट देम। ओके। तो ये आइडिया था। इस आइडिया को फिर फर्दर जब डेवलप करते करते अपॉर्चुनिटीज आती गई तो पता चला कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर एक ब्राइट करियर भी है, और एज ए करियर वो एज ए पैशन स्टार्ट हुआ था, फिर करियर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करें बिफोर के टॉपिक की तरफ चले। अब तक आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली या आपके डिफरेंट जो आपको असाइनमेंट्स मिली हुई हैं उनके हिसाब से कोई मतलब कुछ एक स्पेशल ऐसी कोई चीज़ें आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हो जो आपको लग रहा है कि आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए एक अचीवमेंट की तरह हमें देखनी चाहिए? सर मेजरली तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ में ऑपरेशंस हैं, वो तो मैं ओवर द कॉल शोकेस नहीं कर सकता यहाँ पे और डिस्कस नहीं कर सकता, बट एक अचीवमेंट ये है, मुझे 2017 में अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से इंडिया में। तो वो इंडिया का फर्स्ट साइबर क्राइम की फील्ड का फर्स्ट अवार्ड है। सेकंड अवार्ड अभी तक इस फील्ड में नहीं मिला है किसी को। अच्छा, सो आपकी टीम में अभी और कितने टीम मेंबर्स हैं, या आप इसको सिंगल हैंडेडली मैनेज करते हो या कैसे, थोड़ा सा ये भी एलैबोरेट करना चाहें? हाँ नहीं, वी हैव ए टीम ऑफ 25 बाय डिफॉल्ट। ये अभी करंटली साइज ये है, केस टू केस बेसिस, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस हायरिंग होती है और उसके ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹਮ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਗਰਵ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਈਬਰ ਆਪਸ ਨਾਲ ਖੁਦ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੈਪੁਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਔਰ इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले जेडे साइबर एक्सपर्ट मैं इन्होंने मानना। जी हरजिंदर जी। राइट। सो मुकेश जी, अभी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स को बताएं, आप अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में एज ए लेमैन अगर अंडरस्टैंड करना हो, ये साइबर क्राइम है क्या सर? साइबर क्राइम अगर इजी लैंग्वेज में समझना है तो साइबर क्राइम बेसिकली कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटर से, चाहे वो मोबाइल फोन हो या लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम हो, उसके थ्रू उसको एज ए टूल या उसको एज ए मीडियम यूज करके या उसे एज ए टारगेट यूज करके अगर कोई क्राइम करते हैं तो वो साइबर क्राइम है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें सर नेक्स्ट लेवल थ्रू किया हो या कंप्यूटर पे कोई क्राइम किया हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आप नॉर्मली होता है कि बंदा सोचता है कि यार बड़ी बड़ी कंपनीज जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं उनके पास अपने स्पेशल सेल होते हैं, अपनी स्पेशल टीम्स होती हैं जो प्रोटेक्शंस के लिए या अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए होते हैं। उनको भी खतरा रहता है, या ये आम पब्लिक के लिए डेंजरस ज़्यादा ऐसे क्राइम्स के तौर पे लोगों को टारगेट किया जाता है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट्स को टारगेट किया जाता है? इंटरेस्टिंगली सर, इसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फोन यूज कर रहा है, वो चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे ही विक्टिम है इसमें। अच्छा, सारे टारगेट है। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के क्राइम के साथ एक हम टर्म यूज कर रहे हैं या फिर जोड़ के देख रहे हैं, वो है कि क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी और साइबर क्राइम, क्या रिलेशन है सर इनके बीच में? इसके अंदर एक रिलेशन है कि अगर कोई क्राइम में, चाहे वो साइबर क्राइम हो या कोई टिपिकल अदर कोई हीनियस क्राइम हो, क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम बन गया है पिछले कुछ सालों से
जिसके अंदर कुछ जो प्लेटफॉर्म्स है, वन ऑफ द फेमस टोकन इज बिटकॉइन, हाँ जी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज नॉर्मल क्रिमिनल्स जो हैं वो उसको यूज कर रहे हैं एज अ मोड ऑफ पेमेंट अनोनिमिटी के लिए, कि पेमेंट रिसीव हो जाएगा, सेंडर को नहीं पता रिसीवर कौन है, रिसीवर को नहीं पता सेंडर कौन है, और एजेंसीज को नहीं पता कि पेमेंट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। राइट। अच्छा, तो नॉर्मली आप बोल रहे हो कि जैसे हम फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि सुपारी वर्ड यूज किया जाता है कि सुपारी दे दी, तो आर यू टॉकिंग अबाउट समथिंग सिमिलर? हाँ, अगर आप उसकी बात करेंगे तो वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्ल्ड है जो डार्कनेट पे यूज होता है। बेसिकली इंटरनेट को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। हाँ जी, एक हो गया सरफेस नेट या सरफेस वेब, मतलब जो हम गूगल में या किसी सर्च इंजन में सर्च करते हैं, कोई हमें वेबसाइट या कोई इमेज या कोई वीडियो दिखता है, जैसे आपने यूट्यूब पे सर्च किया, कोई वीडियो दिख गया, हाँ जी, आपका किसी ने चैनल सर्च किया, यूट्यूब पे आपके वीडियोज अवेलेबल हैं, कोई देख सकता है। राइट, बट आपके गूगल अकाउंट में लॉगिन करके आपके जीमेल में क्या मेल्स आए हैं वो नहीं देख सकता। उसे कहते हैं डीप नेट। हाँ जी, तो सरफेस नेट जो इंटरनेट पे ब्राउज करके विजिबल हो जाता है, डीप नेट वो डेटा होता है जो कोई ऑथेंटिकेशन के बाद में आप देख सकते हैं, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद में दिखेगा आपको। हाँ जी, वेबसाइट का डेटाबेस हो गया, सर्वर का डेटा हो गया, या किसी मेल बॉक्स का डेटा हो गया। और एक होता है जो थर्ड और लास्ट होता है, वो होता है डार्क नेट। डार्क नेट जो है वो नॉर्मली इस तरीके से ब्राउज नहीं होता, उसको कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज करके आप डार्क नेट की वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। राइट, गूगल पे सर्च करने से नहीं दिखता। वो वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक जो कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है वो है टॉर। ओके, तो टॉर एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ये एक ओनियन नेटवर्क होता है बेसिकली, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो जब टॉर ब्राउजर कोई डाउनलोड करेगा और उसके थ्रू अगर टॉर से डार्कनेट की वेबसाइट्स को एक्सेस करता है, तो डार्कनेट जो नॉर्मली जो वेबसाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा उनके पीछे .com, .in या .org, .ca, हाँ जी, कनाडा में हमारे .ca चलता है। .ca, ओके। तो ये जो कंट्री स्पेसिफिक, जैसे .ca है, ये कंट्री कोड है। .com जो हो गया वो जेनरिक हो गया, कमर्शियल। .in इंडिया का हो गया जी। ऐसे ही जो डार्कनेट की वेबसाइट्स होती है उसके एक्सटेंशंस होते हैं .onion। अच्छा, तो ये ओनियन नेटवर्क पे चलता है। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर इंडिया से आप नॉर्मली क्या है कि इंडिया से कनाडा से कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, तो उस वेबसाइट को पता होगा कि आपने कनाडा से ओपन किया, आपका आईपी एड्रेस ट्रेस होगा उस वेबसाइट पे, बाय डिफॉल्ट होता है ये। बट जब डार्कनेट पे आप यूज करते हैं, लेट अस सपोज डार्कनेट पे आपने गूगल यूज किया कनाडा से या न्यूयॉर्क से, तो जब आप गूगल को विजिट करेंगे तो गूगल को नहीं पता होगा कि वो कनाडा से ओपन हो रहा है। अच्छा, कनाडा से आप कनेक्ट करेंगे मे बी नीदरलैंड से आप कनेक्ट करेंगे रशिया से हो सकता है आपने जर्मनी कनेक्ट किया, जर्मनी के बाद में गूगल ओपन हो रहा है। अच्छा, सो ये 3 डिफरेंट सर्वर्स के बाद में फाइनली गूगल ओपन होगा। तो ये ओनियन नेटवर्क है, बेसिकली लेयर्स हैं यहाँ पे। राइट। ਅੱਛਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀਏ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्राइम ਦੇ ਨਾਲ एजुकेशन का कोई भी लेना देना नहीं हैगा। अच्छा मुकेश जी, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं कि आप बोल रहे थे कि बिटकॉइन या डिफरेंट तरह की क्रिप्टो करेंसीज को इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पेमेंट्स पे करने के लिए, है ना। तो अभी ये इस नेक्स्ट स्टेज पे आप बताएं थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्राइम्स को कंडक्ट किया जाता है। अगर बिटकॉइंस के जरिए कोई पेमेंट्स हो रही हैं तो क्या क्या ऑफर्स होती हैं या कैसे वो चीज़ें आगे चलती हैं। बेसिकली जैसे डार्कनेट, अभी हम डिस्कस कर रहे थे डार्कनेट के बारे में,
तो डार्कनेट पे मल्टीपल पोर्टल्स होते हैं, जैसे ड्रग्स के भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आर्म्स एंड एमिनेशंस के वेबसाइट्स भी हैं, और वहाँ पे बेसिकली किसी को टास्क भी असाइन कर सकते हैं कि अगर कोई चाहता है कि अच्छा ठीक है, आई वांट समवन टू बी किल्ड, तो उसको बेसिकली किलिंग के लिए असाइनमेंट दे सकता है, या किसी को कोई फिजिकल असॉल्ट के लिए असाइनमेंट दे सकता है। $5,000 से लेके $200,000 तक के उनके रेट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट। ओके। सो यहाँ पे क्या है कि जो जिसने टास्क असाइन किया वो भी अनोनिमस है, जिसने टास्क लिया है वो भी अनोनिमस है, पेमेंट भी अनोनिमसली हो रहा है। तो ये अनोनिमिटी के चलते इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को स्पेस मिल जाता है और वो इजीली यूज करते हैं इसे। तो सर ऐसी ये ट्रेंड्स काफी पॉपुलरली अभी चल रहे हैं ऐसे इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे, या कैसे बहुत लिमिटेड है अभी? ये वर्ल्ड लेवल पे चलता है, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है ये कॉमन पब्लिक में, बट यस ये है ट्रेंड में और काफी सालों से चल रहा है ये। तो जो गवर्नमेंट के स्पेशल सेल्स होते हैं या स्पेशली ऐसी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हो? इसके लिए वैसे हायर लेवल पे साइबर पेट्रोलिंग सेल्स की रिक्वायरमेंट है। एज सच अभी इंडिया की बात करूं तो काफी स्ट्रगलिंग फेज है इंडिया के लिए ये, क्योंकि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास में कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है डार्कनेट का। हाँ जी। कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसमें डार्कनेट की वेबसाइट्स को हैक करके जो वेबसाइट कंट्रोल कर रहा है, उस वेबसाइट पे जो सर्विसेज इलीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको उसके थ्रू ट्रेस करते हैं। फिर क्या होता है कि 1% ट्रेस हो जाता है तो वो एज ए इन्फॉर्मर आपका बन जाता है और वो बाकी पोर्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करता है और पूरा चैनल पकड़ में आता है। इसमें जो सबसे इफेक्टिव काम अब तक किया है किसी ने तो वो FBI है। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि अमेरिका में ये चीज़ों पे काफ़ी इफेक्टिवली काम हो रहा है बाकी देशों के अगर कंपेयर करना हो? यस। अच्छा सर, इसकी नेक्स्ट एक्सटेंशंस की बात करें, अब जब लेट्स से आपने बोला कि ये चीज़ें चल रही हैं तो बहुत सारे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं तो उनको तो पता ही होगा, वो तो एक्सेस ले रहे होंगे या किसी न किसी तरह इसको एक्सेस कर रहे होंगे, लेकिन जो विक्टिम बनते हैं लोग वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? या कोई ऐसी चीज़ें, चाहे जैसे आपने बोला कि एक्सट्रीम लेवल पे होगा कि किसी को मर्डर करने की अगर कोई ऐसी सुपारी के तौर पे एक कॉल जनरेट कर दी गई और पेमेंट हो गई या सारा कुछ हो गया, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। लेकिन उससे नीचे के लेवल पे अगर हम देखें, थोड़ा बहुत छोटे छोटे तौर पे अगर आम पब्लिक को या आम छोटी छोटी कंपनीज को या इवन बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को भी अगर टारगेट किया जाता है तो वो कैसे ये क्राइम एग्जीक्यूट किया जाता है? अच्छा, अगर मैं बेसिक साइबर क्राइम्स के बारे में बात करूं, बिकॉज ये बहुत हाई लेवल की हम बात कर रहे हैं डार्कनेट की। हाँ जी। तो जो बेसिक रूटीन साइबर क्राइम्स हैं, जैसे एक इंडिविजुअल के लिए क्या होता है कि उसके मोबाइल फोन पे जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के। फाइनेंशियल फ्रॉड्स में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड्स, बिकॉज डे टू डे लाइफ में आप जो यूज करते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, आपने डेबिट कार्ड यूज किया, हाँ जी। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नॉर्म्स हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हमारा कोई जो जैसे इंडिया में OTP वेरिफिकेशन है, हाँ जी, ठीक है, कुछ कंट्रीज में OTP वेरिफिकेशन नहीं है, तो उसको 3D गेटवे बोलते हैं। जब आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV आपने इंसर्ट किया, फिर मोबाइल फोन पे एक OTP आएगा, OTP इंसर्ट करने के बाद में ही पेमेंट होगा। दिस इज 3D गेटवे। जी। 2D गेटवे मतलब आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV आपने इंसर्ट किया वेबसाइट पे और पेमेंट हो जाएगा। अच्छा। सो वेदर आप 2D गेटवे यूज कर रहे हो या 3D गेटवे यूज कर रहे हो, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो भी हैं उनमें आपको लॉग इन करके आपको लिमिट सेट करना मैंडेटरी है। हाँ जी। कि आपने लिमिट सेट कर दिया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या POS मशीन पे ट्रांजेक्शन या फिर ATM से कैश विड्रॉल के ट्रांजेक्शन पे लिमिट है। आपने लिमिट सेट कर दिया तो आप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो आप रेकमेंड कर रहे हो कि ऐसी हमारी अरेंजमेंट्स के तौर पे, हमारी अपनी तौर पे ही कोई ना कोई कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें? यस। सो एक पार्ट तो ये हो गया कि आपने एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया और उसे ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट कर दिया कि ओके ठीक है, $500 से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं होगा या $50 से ऊपर ऑनलाइन नहीं होगा। हाँ जी। जब आपको उसे लिमिट को इंक्रीज करना है, आपको पेमेंट करना है, आपने इंक्रीज किया, पेमेंट किया, फिर उसको वापस से ऑफ कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस को डिसेबल कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट इफ यू आर नॉट यूजिंग इट। अच्छा। बिकॉज लेट अस सपोज कनाडा से कोई कार्ड का डेटाबेस, कोई वेबसाइट है कोई जहां पे क्रेडिट कार्ड का डेटाबेस था और उसको किसी ने नाइजीरिया में मिसयूज कर लिया। बिल्कुल ठीक।
आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है। सॉरी मुकेश जी, मैंने आपको रोक दिया बीच में। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ? ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, डेफिनेटली आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट और हमारे सभी लिसनर्स को ये पॉइंट तो मुझे लगता है कि आज से ही अपनी बैंक्स में या अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में जाके ये चीज़ को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कोई स्पेशल अथॉरिटी के तौर पे उसको करें, कि अदरवाइज ऐसे ना हो कि बिना आपके परमिट के, बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके साथ कंफर्म किए कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ना हो पाएँ। इसको आगे नेक्स्ट बात पे जोड़ें सर। सेकेंडली, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आप डिसेबल रखना चाहिए जब आप नहीं यूज कर रहे हैं, और पीओएस मशीन पे अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, जब आपको यूज करना होगा तब आप उसको ऑन कर सकते हैं। ऐप में मोबाइल नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या ऐप में लॉगिन करके उसको डिसेबल करके रख सकते हैं बाय डिफॉल्ट। लाइक एक फीचर मैं यूज करता हूँ कि इन केस आपका वॉलेट गुम गया, मिसप्लेस हो गया, तो वो तो कोई साइबर क्राइम है नहीं, बट वो वॉलेट किसी को मिल जाएगा, वो आपका कार्ड को अनऑथराइजली यूज कर सकता है, या जब तक आपको पता चला कि आपका वॉलेट गुम गया तब तक बहुत लेट हो जाएगा। हाँ जी, वो मिसयूज कर सकता है। तो बेटर है कि आप अपनी ऐप में लॉग इन करके सारे ट्रांजेक्शंस, एटीएम विड्रॉल्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, पीओएस ट्रांजेक्शंस, सबको डिसेबल करके रखेंगे, तो वॉलेट अगर किसी को मिल भी जाएगा तो आपके कार्ड से कोई विड्रॉल कर ही नहीं सकता। जब यूज करना है उसे इनेबल कर दो, इट हार्डली टेक्स 30 सेकेंड्स। राइट। सो दिस इज वन। सेकेंड इज जो टैप एंड पे का ऑप्शन होता है कार्ड में, तो ये RFID सपोर्ट करता है, जिसमें आप टैप एंड पे कर सकते हैं। सो उसके लिए अगर आप वॉलेट्स जो हैं RFID प्रोटेक्ट वॉलेट यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप सबको RFID प्रोटेक्ट वॉलेट यूज करना चाहिए। जिसमें आपके वॉलेट में अगर कार्ड है, पीछे से अगर किसी ने मशीन को टच किया वॉलेट पे, आपके पॉकेट पे, तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। उस ट्रांजेक्शन को अवॉइड करने के लिए RFID प्रोटेक्ट वॉलेट होता है। अगर आपके पास में RFID प्रोटेक्ट वॉलेट नहीं है, तो जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके कार्ड को अपने वॉलेट में रख सकते हैं, उसमें वो RFID प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि कई बार तो बंदा सोचता है यार कि हमारे लिए ये चीज़ें अगर जितना डिजिटली हमें आसानी दिख रही है, उतना ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी और के लिए हमें ठगने के लिए, हमें हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए भी उतना ही ईजी हो रहा है साथ में। बिल्कुल, बिकॉज कार्ड फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं वर्ल्ड वाइड। इवन इनफैक्ट कुछ साल पहले का इंसिडेंट है यहाँ पे, रोमानिया से कुछ फ्रॉडस्टर्स इंडिया में सिर्फ इसलिए ट्रेवल किया उन्होंने क्योंकि उन्हें कार्ड क्लोनिंग करना था। अच्छा, रोमानिया से उन्होंने दिल्ली में इंसिडेंट किया, दिल्ली में क्लोनिंग किया, जयपुर में क्लोनिंग किया, हैदराबाद में क्लोनिंग किया। हाँ जी, ये 3 सिटीज में क्लोनिंग किया और तीनों सिटीज में इनकी गैंग पकड़ी गई। अच्छा, हमने खुद ने जयपुर में उनको पकड़ा, 7 ATMs में उन्होंने कार्ड क्लोनिंग डिवाइस लगाए और 53 लाख रुपीस हमने उनसे कैश रिकवर किया। ओह, अच्छा सर, अभी नेक्स्ट स्टेज पे मुझे पता है ये एक बहुत बड़ा मतलब एक डिस्कशन हमारी घंटों के प्रोग्राम्स में भी कम पड़ेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जाते जाते 1-2 चीज़ें और बताएं कि लेट्स से इंडिया में या किसी और कंट्री में, जैसे हम आज कनाडा की, टोरंटो की, ब्रैम्पटन की बात करें, तो आप समझते हो कि ये सारी कुछ ना कुछ चीज़ें तो सिमिलरली फंक्शंस होंगे, और कुछ चीज़ें होंगी जो कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी या इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिफरेंटली मैनेज हो सकती हैं। सो थोड़ा सा और इस पे आप हमें बताना चाहें कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी है तो कंप्लेंट करने के लिए या और कोई और बेहतर आइडियाज़ क्या देना चाहते हो आप?
जनरली अगर इंडिया से मैं स्टार्ट करता हूँ। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। उस पर ऑनलाइन रिपोर्ट हो सकता है, कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट कर सकता है उसे। और रिपोर्ट करने के बाद में जो लोकल एड्रेस देते हैं, उस लोकल एड्रेस के बेस पे लोकल पुलिस स्टेशन को केस फॉरवर्ड हो जाता है। सो इधर पुलिस विल देन रजिस्टर दिस एज ए कंप्लेंट और FIR एंड इन्वेस्टिगेट द केस। अगर उसके बाद में भी नहीं होता है तो उससे एक PDF जनरेट होता है, वो PDF ले जाके पुलिस स्टेशन पे जाके उसकी कंप्लेंट या FIR करवा सकते हैं। दिस इज वन प्रोसेस। ठीक है। अनदर प्रोसेस इज हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक स्टेट में अलग अलग नॉर्म्स हैं। कहीं पे साइबर क्राइम डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन हैं, कहीं पे लोकल पुलिस स्टेशन हैं। तो इंडिया में क्या हो रखा है कि हर एक जगह नॉर्म्स बने हैं कि अगर 1 लाख से अबव फाइनेंशियल फ्रॉड है तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाएगा, अदर टाइप ऑफ फ्रॉड है तो लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगा। तो अपने एरिया वाइज लोकल पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बेस्ट पार्ट ये है कि वो समझ सकते हैं कि अच्छा ठीक है कहाँ पे रिपोर्ट होगा ये कैटेगरी ऑफ क्राइम। ओके। और सेम गोज विद अदर कंट्रीज। वहां पे भी जो हेल्पलाइन नंबर होता है दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि ज्यूरिसडिक्शन किसका है, राइट, और कहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है। अच्छा सर, लास्ट में एक चीज़ और बात करेंगे और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेते हैं कि नॉर्मली हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी कनाडा की बात करें तो शायद इंडिया में भी ऐसा तो हो रहा है कि आपको बहुत सारी ऐसी ईमेल्स आ जाती हैं या बहुत सारे आपको टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं, जैसे आज की बात करें इन दिनों में, क्योंकि पता है कि सभी को टैक्सेशन से रिलेटेड सीजन चल रहा है, तो आपको CRA की तरफ से किसी ना किसी तरह ऐसे बिल्कुल जेन्युइन लगेंगे आपको। नॉर्मली जो बंदा देखेगा उसको लगेगा हाँ यार मैंने टैक्स फाइल किया था, हो सकता है उसका रिफंड आ रहा है मुझे, तो वो एक लिंक जनरेट करके हमें टैक्स मैसेज कर दिया जाता है या ईमेल भेज दी जाती है। तो अगर हम उनको क्लिक करते हैं तो कैसे, क्या डेंजर हो सकता है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कभी आपके चाहे मोबाइल फोन पे कोई लिंक हो या मोबाइल फोन पे कोई अटैचमेंट हो या कंप्यूटर सिस्टम में कोई अटैचमेंट फाइल आपको सेंड करे या कोई लिंक सेंड करे, तो देयर इज अ वेरी गुड वेबसाइट कॉल्ड virustotal.com। सो क्या बोला, एक बार रिपीट करें। virustotal TOTAL VIRUS virus TOTAL.com। So with P like Peter, right? No, total. So with T for telecom. Got it. Virus Total, ठीक है। virustotal.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप वो पर्टिकुलर लिंक जो भी आपको लगता है कि वेदर दिस लिंक इज सेफ और नॉट, इस वेबसाइट पे जाके आप स्कैन कर सकते हैं। वर्ल्ड के मोर देन 50 एंटीवायरसेस उसको स्कैन करके आपको रिजल्ट देंगे। तो ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट चलती है या इंडिया के लिए सिर्फ? ये वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, सो वायरस प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय गूगल। सो मैं एक बार स्पेलिंग दे देता हूँ, VIRUSTOTAL virustotal.com। तो ये सेफ है, इस पे आप अगर जस्ट कंफर्म, वैसे तो मुझे लगता है कि नॉर्मली थोड़ी सी कॉमन सेंस के तौर पे अगर आप जज करना चाहें तो वो पता चल जाता है कि फ्रॉड मैसेज है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो virustotal.com आप बोल रहे हो कि इस वेबसाइट पे जाके इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। इस वेबसाइट को ओपन करके 2 ऑप्शन है इसमें आप अटैचमेंट भी डाउनलोड, अगर कोई सस्पिशियस अटैचमेंट आपको लगता है, फाइल लगता है, तो फाइल इसमें अपलोड करके स्कैन कर सकते हैं। और फिर वर्ल्ड के टॉप बेस्ट एंटीवायरसेस स्कैन करके आपको रिजल्ट शोकेस करेंगे। बिकॉज आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो सकता है कि एक ही एंटीवायरस हो, हर कोई 50 एंटीवायरस तो नहीं रख सकता अपने कंप्यूटर सिस्टम में जी। उसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए आपको। जी। नाउ अब ये वर्ल्ड के सारे एंटीवायरस स्कैन करके डिटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि वो जो मैलिशियस फाइल थी उसने आपके एंटीवायरस का सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर लिया हो। ओके। तो हो सकता है आपके पास जेन्युइन एंटीवायरस है बट उसके बाद में भी आपके सिस्टम को उसने प्रोटेक्ट नहीं किया और सिस्टम हैक हो गया। हाँ जी। अब ये वर्ल्ड के बेस्ट एंटीवायरस जब उसको स्कैन करेंगे तो अगर किसी ने भी डिटेक्ट किया तो उसका सामने उसका रिजल्ट शो होगा। ओके। कि क्या रिजल्ट है, और ऊपर इसमें डिटेक्शन रेशियो आता है कि टोटल इतने एंटीवायरस ने स्कैन किया, कितने एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया है। अगर सारे बोल रहे हैं कि सेफ है तो प्रोबेबली वो फाइल सेफ होगी, 99.99% सेफ है। रेस्ट जो 0.001% है वो डिपेंड करता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, आर यू फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज और समथिंग। क्योंकि कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड का कोई भी एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं करता। इफ यू आर अ कॉमन पर्सन तो उसके लिए तो ठीक है, ऑलमोस्ट आप सिक्योर हो गए, सेफ हो गए। ठीक है। सेकेंडली, इस वेबसाइट पे प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि आप वो लिंक भी स्कैन कर सकते हो, सस्पिशियस लिंक, और अटैचमेंट फाइल भी स्कैन कर सकते हो। बट अगर आप कोई ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ पे कोई वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है
तो इट इज सजेस्टेड कि इस वेबसाइट को यूज नहीं करें, बिकॉज यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मतलब है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द एंटीवायरस कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। तो एक्चुअली तो मुझे ये लग रहा है कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा उसको अगर आप थोड़ा केयरफुली नोटिस करें तो आपको पता चल जाता है कि यार ये मैसेज या ये जो ईमेल है ये स्पैम है या फ्रॉड ईमेल है, तो उसको कोशिश करें ओपन ना ही करें। नहीं, यहाँ पे इसमें आप सबसे पहले तो फोकस करके ईमेल आईडी देख सकते हैं कि ईमेल आईडी क्या है, बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं यूजर नेम पे फोकस कर लेते हैं और @ के बाद में एक्सटेंशन में क्या लिखा है उस पर फोकस नहीं करते हैं। राइट। अच्छा मुकेश जी, मेरे साथ ना 2-3 कॉलर्स हैं, शायद डेफिनेटली हमारी ये बात इंटरेस्टिंगली सुन रहे होंगे हमारे लोग और हमारे लिसनर्स, तो शायद अगर आप अलाउ करें तो मैं 2-3 कॉलर्स को साथ में ले लूं। श्योर। हाँ जी, सो नवतेज जी ने साडे पहले कॉलर। हाँ जी नवतेज जी, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। हाँ जी, सत श्री अकाल भाजी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਵੇਂ virustotal.com ਉਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। सो मुकेश जी, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए इनका मैसेज? नहीं, मुझे क्लियर नहीं। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि लेट्स से अगर हमने कोई भी ईमेल का लिंक ऐसे virustotal.com वेबसाइट पे स्कैन करना चाहा और इस चीज़ के लिए हमें फिर भी क्या श्योरिटी मिलेगी कि वो जेन्युइनली वो ठीक लिंक है हमारे लिए, या हमें ओपन करना चाहिए या नहीं? श्योरिटी ऐसे मिलेगी कि वर्ल्ड के बेस्ट एंटीवायरसेस ने, वर्ल्ड के टॉप एंटीवायरसेस ने सबने चेक कर लिया। आपके पास हो सकता है कि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में नहीं था, या हो सकता है कि आपके पास में एक ही एंटीवायरस है, पर वर्ल्ड के अगर 50, 60 या 90 कर रहे हैं तो उससे बेटर तो श्योरिटी क्या होगा। ठीक है ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ जी, ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर। अच्छा मुकेश जी, सॉरी मैं लास्ट अभी और कॉल्स तो नहीं लेंगे, एक कॉल थी वो ड्रॉप होगी, अभी और कॉल्स नहीं लेते। लास्ट बात अगर आपसे पूछना चाहूँगी, लेट्स से अगर ऐसे कोई भी लिंक्स वगैरह पे बाय मिस्टेक हमने क्लिक कर दिया या अपने फ़ोन पे मैसेज को क्लिक करके उसको हमने बाद में एकदम से छोड़ दिया, तो क्या खतरा क्या हो सकता है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे कंप्यूटर के ऊपर या हमारे फ़ोन के अंदर? मेजोरिटी ऑफ केस के अंदर लिंक पे क्लिक करने से कुछ नहीं होता। ना कोई फोन हैक होता है, ना कोई कंप्यूटर सिस्टम हैक होता है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 90 या 95% केसेस, इनफैक्ट 98% केसेस। ओके, बिकॉज अगर लिंक पे क्लिक करते हैं, अगर सिस्टम या मोबाइल फोन हैक हो जाए या कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाए, ये अटैक्स बहुत हाई एंड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, मोर देन $1 crore और समथिंग इट विल कॉस्ट। अच्छा, लाइक जैसे पैगासस अटैक था, पैगासस अटैक आपने सुना होगा, फेमस है। ठीक है। पैगासस अटैक था जिसमें मल्टीपल कंट्रीज के अंदर मोबाइल फोन्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे। इंडिया में भी बहुत इसका हाइप क्रिएट हुआ था, जिसमें पॉलिटिशियंस ने क्लेम किया था कि कांग्रेस के पॉलिटिशियंस ने क्लेम किया था, राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि मेरा मोबाइल फोन हैक हुआ है। हाँ जी, गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगे थे। ओके, तो ये इजरायली कंपनी थी जिसने डेवलप किया था सॉल्यूशन। एक मोबाइल फोन को हैक करने की कॉस्ट वाज $1 crore। ओके, ओके, सो इतने हाई एंड अटैक अगर होंगे तो फिर तो आप लिंक पे क्लिक करते हैक हो सकते हो। तो जनरली इतने हाई एंड अटैक्स हर कोई किसी पे ऐसे वेस्ट नहीं करता। ओके, तो नॉर्मली फिर ये जो मैसेजेस आते हैं वो क्या काम करते हैं, वो फ्रॉड कैसे करते हैं? वो बेसिकली उस पर क्लिक करने के बाद में फिर आप जाएंगे, हो सकता है आपसे कार्ड से डिटेल पूछेगा वो, आप अपने कार्ड से डिटेल इंसर्ट करो, क्रेडिट कार्ड डिटेल या डेबिट कार्ड डिटेल, या आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। गॉट इट। तो ये फिशिंग लिंक्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे आप जो इंसर्ट करेंगे डिटेल्स, वो अटैकर के पास चली जाती है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि आपके फोन में या कोई भी जो पासवर्ड सेव है या आपके अकाउंट्स की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली कोई ऐसे हमें इतना ज्यादा कोई डरने की जरूरत नहीं होती until unless you are a high profile person। ओके, राइट, ठीक है मुकेश जी, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कोशिश करेंगे अगर फिर कहीं चांस मिला तो आपसे दोबारा बात करें। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ऑनलाइन सेफ रहना तो ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ओके,
सो जी ऑनलाइन सेफ रहना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑफलाइन रहो। ठीक है जी, वेरी गुड। मुकेश जी आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे सर? बेसिकली अभी करंट सिचुएशन में अपने आप को सिक्योर्ड और सेफ रहने के लिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। हाँ जी। खुद को अपडेट रहना जरूरी है, बच्चों को अपडेट करना जरूरी है, लॉज के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आप इग्नोरेंट हैं तो आप एक पोटेंशियल टारगेट है। ओके, ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए, आपने समय निकाला और हमारे लिसनर्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ।